Good morning, dear students. As you all know, we have been discussing chapter 3rd of history and empire across three continents, a Roman Empire. So far, we have discussed topics like the sources by which we can recreate the history of Roman Empire. Then we have seen the geography of Roman Empire, that the extent of Roman Empire. Then the next topic which we have to run up is the early empire, that how does the Rome, which is a group of village in starting at the 750 BC, grows as an empire around 1st century. We have seen all the journey from a monarchy to an empire. Then the three main pillars we have seen: the army, the senate and the emperor. Growing middle class, gender, literacy, culture, social hierarchies, economic expansion, everything has been discussed in this chapter in earlier videos. Today we will start from the late antiquity. The topic today we will going to take is late antiquity. What does this mean? Late antiquity mean? Late antiquity means the period from 4th to 7th century. The period from 4th to 7th century is known as late antiquity. As we have already discussed the early empire, first topic which we have to put is the early empire. Means we have discussed the period from 750 BC to 3rd century, because we already know that Roman Empire has been divided into two phases: early Roman Empire and late Roman Empire. The early Roman Empire is the phase from 750 BC to 3rd century, and the period after 3rd century is known as the late antiquity or late Roman Empire. So let's start the topic. We shall conclude this chapter by looking at the cultural transformation of Roman world in its final century. देखिए हमें जो चैप्टर है इसको conclude होगी. This is the last chapter of the chapter. चैप्टर जो है इसको conclude कहाँ से करेंगे? जो रोमन वर्ल्ड जो है उसके अंदर जो डेवलपमेंट होते हैं, जो कल्चरल डेवलपमेंट होते हैं रोमन वर्ल्ड में फाइनल सेंचुरीज में, उनको हम जो है यहाँ पे देख के इस चैप्टर को जो है फिनिश करेंगे. लेट एंटिक्विटी इज द टर्म नाउ यूज. दिस इज अ थिंग यू मस्ट हैव टू अंडरलाइन इट, बिकॉज़ डायरेक्ट क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड ऑफ यू. लेट एंटिक्विटी is the term now used to describe the final fascinating period in the evolution and breakup of the Roman Empire and refers broadly to 4th to 7th century. Late antiquity क्या है? देखिए late antiquity term का मीनिंग है the final fascinating period, means जो Roman Empire है उसके evolution और breakup का जो final fascinating period है from 4th to 7th century, उसको हम कहते हैं late antiquity. The 4th century itself was considerable ferment. The 4th century खुद अपने आप में काफ़ी बड़ा जो है इम्पोर्टेंस रखती है एट द कल्चरल लेवल. बोथ कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस 4th century के पीरियड में. एट द कल्चरल लेवल द पीरियड शो मोमेंटस डेवलपमेंट इन रिलीजियस लाइफ विद द एम्परर कॉन्स्टेंटाइन डिसाइडेड टू मेक क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन. The Emperor Constantine decided to make Christianity official religion. What does this mean? This means that in the 4th century period, the Roman Emperor Constantine decided to make Christianity as the official religion of Roman Empire. जो Roman Empire है उसके official religion के रूप में किसको decide करता है? Christianity को. कौन decide करता है? Constantine. And with the rise of the Islam in the 7th century, but there were equally important changes in the society. इसी के साथ में देखिए और क्या चीज होती है इसी लेट एंटिक्विटी के पीरियड में. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेट एंटिक्विटी इस्लाम जो है वो भी राइज होता है कहाँ पे? अरेबिया में, अरेबियन पेनिनसुला में अराउंड 7th century. Furthermore, but there were equally important changes in the society. Structure of the state that began with the emperor Diocletian. And it may be best to start with this. देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे चेंजेस हमारे देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर के अंदर. ऐसे ही चेंजेस थे. एम्परर जो डायक्लेटियन है एम्परर, उसके पीरियड के कुछ चेंजेस जो है उनके बारे में हम सबसे पहले बात करें. व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट? वी आर गोइंग टू डिस्कस चेंजेस which has occurred during the period of Diocletian. Diocletian overexpansion had led Diocletian to cut back by abandoning territories with later strategies or economic value. Diocletian is the king of Roman Empire. during the period of 284 to 305 century, means
In the starting of 4th century, he was the king of Roman Empire. What does Diocletian has done? Diocletian just cut back some territories who have little or no economic value. Little strategic or low economic value means ऐसे places, those places which are least strategic for the empire and giving a low economic value. जिन एरियाज की इकोनॉमिकली वैल्यू जो है यानी जहाँ से इनकम जो है एम्पायर को वो बहुत कम हो रही है, या ऐसे एरियाज जिनकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू मीन्स प्लेसेस जिसके थ्रू कि आप एक वास्ट एरिया जो है उसको कंट्रोल कर सके। मीन जैसे जम्मू कश्मीर है हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है, ऐसे अगर कोई एरिया जिसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं हो, दोज एरियाज वो नो स्ट्रेटेजिक वैल्यूज, वो स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं हो उनको, या फिर जहाँ से इकोनॉमिक जो है कोई इनकम नहीं हो रही है उनको अबेंडन करने के बारे में जो है किसने शुरुआत की? डायक्लुशन ने। Diocletian also fortified the frontier, recognized provincial boundaries. देखिए और क्या क्या Diocletian fortified the frontier, reorganized provincial boundaries and separated civilian from military functions, granting greater autonomy to the military commanders who now became a more powerful group. देखिए और क्या क्या Diocletian ने उसने जो फ्रंटियर्स हैं, जो बाउंड्रीज थी रोमन एम्पायर की, उनको फोर्टिफाइड करना शुरू किया, दीवारें बनाना शुरू किया उनकी चारों तरफ। प्रोविंशियल बाउंड्रीज जो है उनको रिओर्गनाइज किया। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट रोमन एम्पायर हैज बीन डिवाइडेड इन प्रोविंसेस फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस। तो उसके लिए उसने जो प्रोविंशियल बाउंड्रीज है उनको उसने रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया, यानी जो बाउंड्रीज थी स्टेट्स की उसको रीऑर्गेनाइज किया। एंड सेपरेटेड सिविलियन फ्रॉम मिलिट्री फंक्शन, और जो सिविलियन लोग हैं उनको मिलिट्री फंक्शन से सेपरेट करने की शुरुआत की, यानी मिलिट्री फंक्शन जो है उनके अंदर सिविलियंस जो है उनको एंट्री देना बंद किया। ऑल्सो ग्रांटिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडेड डचेस हु नाउ बिकेम मोर पावरफुल, और साथ में जो ड्यूक्स या डचेस जिनको हम कहें मिलिट्री कमांडर्स, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा पावर देना जो है वो शुरू कर दिया। ये चेंजेस जो है किसके पीरियड में आते हैं? एम्परर डायक्लुशियन। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये चेंजेस है, ये एम्परर डायक्लुशियन जो है या डायक्लुशियन जो है उसके पीरियड के अंदर के जो चेंजेस हैं वो हमने देखे रोमन एम्पायर में लेट एंटिक्विटी में। नाउ वी विल डिस्कस कॉन्स्टेंटाइन। Here you can see the statue of Constantine. This is the statue of Constantine. Constantine concentrated some of these changes and added others of his own. His innovations were in the monetary sphere, where he introduced a new innovation, the solidus, a coin of 2.5 gram pure gold that would in fact outlast the Roman Empire itself. Solidi were minted on a very large scale, and then circulation began to million. What was this thing mean? This thing means that Constantine, the Roman emperor who has made Christianity as the official religion, also do some changes. Some changes he adopted from Diocletian's period. जो Diocletian की पीरियड कुछ चेंजेस है उसको तो उसने अडॉप्ट किया, और कुछ अपनी तरफ से भी नए इनोवेशन जो है उसने किए। चीफ इनोवेशन या सबसे मेजर इनोवेशन कौन सा किया था कॉन्स्टेंटाइन ने? जो मॉनेटरी स्क्वायर है उसके अंदर उसने एक जो नया गोल्ड कोइन है 4.5 ग्राम का सॉलिडस, उसको स्टार्ट किया उसने, और इनका सर्कुलेशन जो है वो मिलियंस के अंदर करवाना शुरू किया। द अदर एरिया ऑफ इनोवेशन वॉज द क्रिएशन ऑफ द सेकंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल। देखिए पहला जो है उसने क्या किया इनोवेशन, एक पॉइंट जो है 4.5 ग्राम गोल्ड का, उसकी शुरुआत की सॉलिडस की। सेकंड इनोवेशन जो है वो किया द एरिया ऑफ इनोवेशन वॉज द क्रिएशन ऑफ द सेकंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल एट द साइट ऑफ मॉडर्न इस्तांबुल इन टर्की एंड प्रीवियसली कॉल्ड बिजांटिन एम्पायर। देखिए जो बिजांटिन एम्पायर था पहले जहाँ पे, और जहाँ पे प्रेजेंट डे में जो है तुर्की का जो इस्तांबुल है, कैपिटल ऑफ तुर्की इस्तांबुल, वो सिचुएटेड है। वहाँ पे रोमन एम्पायर की सेकंड कैपिटल जो है वो इसने इस्टेब्लिश की। नेम क्या रखा उसका? कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय द सी। ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ये 3 साइड से जो है सी से सराउंड था। एज द न्यू कैपिटल रिक्वायर्ड अ न्यू सीनेट, द 4th century वाज अ पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन। क्योंकि देखिए जो कॉन्स्टेंटिनोपल है इसने सेकंड कैपिटल जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल में एस्टैब्लिश कर ली, तो जो न्यू कैपिटल है उसके अंदर एक नया सीनेट चाहिए होगा, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शन है वो दोबारा से नया चाहिए होगा। इसके लिए क्या है रैपिड एक्सपेंशन जो वो होता है लर्निंग क्लासेस में। मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन स्टिमुलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन रूरल एस्टैब्लिशमेंट। देखिए क्या हुआ जो ये पीरियड है इसके अंदर मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ चुकी है, गोल्ड कॉइन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, साथ ही साथ में एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जो है उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट होती है, और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड जो है वो शो करते हैं कि जो रूरल सेटलमेंट्स हैं इनके अंदर भी काफ़ी बड़े लेवल पे जो है इन्वेस्टमेंट किया गया।
और क्या देखिए इन्वेस्टमेंट होता है रूरल एरियाज के अंदर देखिए इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन लाइक ऑयल प्रेसेस, ग्लास फैक्ट्रीज, वाटर मिल्स, long distance tracks, all these are some major functions which has been done in this particular period. Now some of the other things, all of this carried over into strong urban prosperity that was marked by the form of architecture and an elevated sense of luxury. ये जो सारी जो चीजें थी, चाहे वो ग्लास फैक्ट्रीज हो या न्यू कैपिटल हो, ट्रेड हो, इकोनॉमिक एक्सपेंशन काफी अच्छा हो रहा था और मॉनेटरी जो स्टेबिलिटी आ चुकी थी एम्पायर के अंदर. All of these carried over into strong urban prosperity that was marked by a new form of architecture and an exaggerated sense of luxury. Exaggerated sense जो luxury का वो यहाँ पे देखने को मिलता है. The ruling elites were wealthier and more powerful than ever before. जो ruling elites यानी जो सीनेट की जो पार्ट थी वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जो है wealthier और powerful बन चुके थे. In Egypt, hundreds of papiries survived from these later centuries and they showed us a relatively affluent society where money was expensive and rural estates generated vast income in gold. इजिप्ट के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे पेपर्स, वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट आर द पेपर्स जो है वो हमें मिले हैं जिनके अंदर ये जो लेटर सेंचुरीज 4th सेंचुरीज के बाद की पीरियड उसके बहुत सारे जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसके अंदर जो रूरल स्टेट्स है जहाँ से जो इनकम जनरेट होती है गोल्ड में उसका मेंशन है. फॉर एग्जांपल Egypt contributed taxes of over 2.5 million already a year, roughly 35,000 LPS of gold. देखिए इजिप्ट जो है वहाँ से देखिए 2.5 million already जो एक ईयर यानी 35,000 LPS गोल्ड जो है वो ईयरली इनकम वहाँ पे हो रहा था ड्यूरिंग द रेन ऑफ जस्टिनियन इन 6th सेंचुरी के अंदर जस्टिनियन का जो रूल था उस वक्त इतनी जो है इनकम इन एरिया से हो रही थी. Indeed, large part of the Near Eastern countryside were more developed and densely settled in 5th and 6th centuries than they would be even in the 20th century. जो 20th century में जो densely settled है उससे भी कई जगह ज़्यादा जो है ये 5th और 6th century से developed थी. This is the social background again which we should start the cultural development of this period. ये तो देखिए social background है लोगों की जो social status की हमने बात की ना और ये discuss traditional religious culture of Roman Empire. Roman Empire की जो कुछ religious culture की हम बात करें the traditional religious culture of the Roman Empire the traditional religious culture of the classical world was Greek and Roman had been polytheist. Greek और Roman दोनों जो हैं ये polytheist mean that the person who is devotee of more than one god. यानी ऐसे लोग जो एक से ज़्यादा देवताओं के जो भक्त होते हैं उनको कहा जाता है polytheist. This involve a multiplicity of cults that included both Roman and Italian groups. कई सारे जो है यहाँ पे देवी देवता जो है उनको ये लोग पूछते थे जैसे Jupiter, Juno, Minerva and Mars, as well as numerous Greek and Eastern deities worship in the thousands of temples, shrines, structure throughout the empire. यानी बहुत सारे जो हैं अलग अलग इनके देवी देवता थे. ये इनका जो है सोशल बैकग्राउंड था. इनकी रिलीजियस जो है वो आइडियोलॉजीज थी. Polytheists had no common name or level to describe themselves. Polytheists का कोई ऐसा common name या level नहीं था जिससे कि उनको describe कर सके. The other great religious tradition in the empire was Judaism. दूसरा जो देखिए great religion जो है वो क्या था? Judaism था. What does this word Judaism? Judaism जो है ये monolith कल्चर जो है उसको फॉलो करते थे. मोनोलिथ कल्चर को फॉलो नहीं करते थे बट दे आर मोनोथीस्ट यानी एक देवता जो है उसको मानते थे. But Judaism was not a monolith either, and there was a great deal of diversity within the Jewish community of the late antiquity. जो Jewish community है उसके अंदर भी हम काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे देख सकते हैं चेंजेस डायवर्सिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है. रोमन एम्पायर जो है इसका देखिए पार्ट कौन कौन लोग हो चुके हैं. Jewish people are the part of Roman Empire. Christianity are the part of Roman Empire. And also Islam has risen up in the Arabia during the 7th century. Thus, the Christianization of the empire in the 4th and 5th century was a gradual and complex process. इस वजह से देखिए क्योंकि लोग क्या हैं यहाँ पे देखिए पॉलिथीइस्ट. रोमन एम्पायर के लोग पॉलिथीइस्ट है. जुडाइज्म जो है ये मोनोलिथिक कल्चर को नहीं मान रहा है. जूस कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे देखते हैं ऐसी कंडीशन में जो क्रिश्चियनाइजेशन का मीन्स जितने भी लोग एम्पायर में रह रहे हैं उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना जो है ये इजी प्रोसेस नहीं था. काफी ग्रेजुअल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था. Polytheism did not disappear overnight, especially in the Western provinces.
where the Christian bishops we running battle against medieval practices, they contain more than the Christianity. देखिए क्या था, पॉलीथीइज्म जो है ये रातों रात तक नहीं हुआ, वहाँ पे जो जुपिटर, जुनो, मिनर्वा, मार्स, जिन गॉड्स को जो है ये लोग वर्शिप कर रहे थे, ये रातों रात तक नहीं हुआ। ये काफ़ी जो है ग्रेजुअल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, जिसके अंदर जो वेस्टर्न प्रोविंसेस है वहाँ पे तो कई सारी मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ा। The boundaries between religious communities were much more fluid in the 4th century than they would become thanks to the repeated effort of religious leaders. The powerful bishops now led the church to gain in their followers and enforce a more set regime of belief. Bishop church ने काफी बड़ा रोल प्ले किया था for the Christianity and Christianity उसको स्प्रेड करने के लिए दूसरे ग्रुप। The general prosperity was especially marked in the east where population was still expanding। और क्या होता है लेट सेंचुरीज के अंदर, इन द लेट सेंचुरीज जो है अराउंड आफ्टर 4th century के बाद की पीरियड में और क्या चीज़ें होती है, द जनरल प्रॉस्पेरिटी वाज स्पेशली मार्क्ड इन द ईस्ट वेयर पॉपुलेशन वाज स्टिल एक्सपेंडिंग इन द 6th century। लेकिन 6th century तक जो पॉपुलेशन है वो ईस्ट के अंदर अभी एक्सपेंड हो रही थी। डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ द प्लेग व्हिच अफेक्टेड द मेंटेनेंस इन द 540s एंड 6th century से मिड 6th century उसके अंदर प्लेग जो है वो मेंटेनेंस के आसपास की एरिया जो इसके ऊपर इम्पैक्ट करता है, इसके बावजूद जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है ईस्ट के अंदर। In the west, by contrast, the empire fragmented continually as Germanic groups from the north grew and the Lombards took over all the major provinces and established kingdoms that are best described as post-Roman। देखिए ईस्ट जो है वो अभी भी प्रॉस्परस था, वहाँ पे अभी भी इकोनॉमी और पॉपुलेशन दोनों का एक्सपेंशन हो रहा था। वही वेस्ट की बात करें हम जो यूरोपियन एरिया की बात करें तो यूरोपियन एरिया में जर्मनिक ट्राइब्स थी या जो जर्मनिक ग्रुप थे गोथ, मेंटर और लॉम्बार्ड्स के, उन्होंने जो है कई सारे मेजर प्रोविंसेस को ले लिया था रोमन्स के हाथों से और वहाँ पे अपने इंडिपेंडेंट किंगडम जो वो एस्टैब्लिश करे, जिनको पोस्ट रोमन के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दिस वर्ड ऑफ द विस्कोथ इन स्पेन की जो पोस्ट रोमन जो है प्रेजेंस है सबसे इंपोर्टेंट कौन सा था, विस्कोथ इन स्पेन डेस्ट्रॉयड बाय द अरब्स between 711 and 720, that of the Franks in Gaul and that of the Lombards in Italy। देखिए विस्कोथ जो है ये स्पेन में अपने आप को सिचुएट करते हैं, फ्रेंच जो है ये अपने आप को गॉल के अंदर, गॉल जो है ये एंशिएंट नेम था फ्रांस के लिए, और लॉम्बार्ड जो है वो अपने आप को इटली में सिचुएट करते हैं। दिस सिस्टम फोरशैडो द बिगिनिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर दैट इज यूजुअली कॉल्ड medieval। यहाँ से ही किंगडम की शुरुआत जहाँ से होती है उसके बाद की पीरियड को जो है medieval पीरियड जो है मानते हैं। हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री, एंशिएंट हिस्ट्री, medieval हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसमें हमने देखिए रोमन और ग्रीक एम्पायर, पोस्ट रोमन एम्पायर हमारे इसमें शामिल है, medieval हिस्ट्री में शामिल है, यहाँ से medieval पीरियड जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। बट देखिए क्या हो रहा है वेस्ट के अंदर, जो यूरोप वाला जो पोर्शन है वहाँ पे इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, बट इन द ईस्ट where the empire remained united, the reign of the Justinian as the high water mark of prosperity and imperial ambition। तो जस्टिनियन का जो पीरियड है उसको काफी अच्छा माना जाता है। ईस्ट के अंदर की ईस्ट जो है वहाँ पे ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है नहीं करते देखने को मिलता है। Recaptured Africa from the Vandals, but his recovery of Italy from the Ostrogoths left the country devastated and paved the way for the Lombard invasion। जस्टिनियन जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें करता है 6th सेंचुरी में, लेकिन ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी वो फिर से रोमन एम्पायर जो है उसे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। बाय द अर्ली 7th century the war between the Rome and Iran had flared up again। देखिए 7th century की शुरुआत में जो रोम और ईरान है उनके बीच में बैटल जो है फिर शुरू होती। हमने स्टार्ट से बात की कि रोमन एम्पायर और इरानियन एम्पायर दोनों एक दूसरे के नेबर्स थे, और क्योंकि दोनों पावरफुल एम्पायर थे तो कॉन्स्टेंट वॉरफेयर में इंगेज थे। यहाँ पे 7th century में फिर से इनके बीच में जो वॉर शुरू होता है, एंड द सासानिड्स हु हैड रूल्ड ईरान since the 3rd century launched a wholesale invasion of the major eastern provinces including Egypt। When Byzantium was the Roman Empire was now increasingly known, required big position in 620s। It was just a few years away literally from the final major blow which came from the southeast। ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या शो करती है कि ईरानियन जो है वो सासानियन डायनेस्टी वो रोमन एम्पायर के चीज़ों पे कब्जा करती है, रोमन एम्पायर को उनको फिर से फ्री करवाता है प्रोविंसेस को। लेकिन फाइनल जो मेजर ब्लो है वो कहाँ से आता है, साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट का मीनिंग है अरेबिया से। द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इन अरेबिया हैज बीन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एवर अकर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। देखिए एंशिएंट वर्ल्ड है, उस एंशिएंट वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन अगर कोई माना जाता है तो वो है
इस्लाम की बिगिनिंग अरेबिया के अंदर। By 642, barely 10 years after the Prophet Muhammad's death, large part of both the Eastern Roman and Sasanian Empire had fallen to the Arabs in a series of Islamic confrontation. देखिए, मोहम्मद पैगंबर जो है या फिर प्रॉफिट मोहम्मद जिनको हम कहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद की बहुत छोटी सी स्टोरी है। 570 बर्थ होती है, 620 इस्लाम जो है उसकी शुरुआत करते हैं मक्का में, बट ड्यू टू सम रीज़न ही हैज़ टू एग्जाइल फ्रॉम मक्का, मक्का से उनको निकाल दिया जाता है, तो वो मक्का से मदीना की ट्रैवलिंग करते हैं 622 में। ये जो ट्रैवलिंग होती है उनकी मक्का से मदीना की, इसको हिजर कहते हो, यहाँ से हिजरी कैलेंडर जो है उसकी शुरुआत होती है। हम बात करेंगे आगे से इस्लामिक जो चैप्टर है हमारा सेंट्रल इस्लामिक स्टेट्स के अंदर। बट एट द एज ऑफ 62 इन 632 सेंचुरी मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनकी डेथ होती है। उनकी डेथ के बाद में कैलिफेट इंस्टीट्यूट बनता है और उसके थ्रू जो है खलीफा जो है उनको अपॉइंट किया जाता है। और वो खलीफा जो है नहीं, देखिए 672 मोहम्मद पैगम्बर्स डेथ एंड 642 जो रोमन ईस्टर्न रोमन और सासिनियन एम्पायर हैं ये अरब के सामने कोलैप्स कर चुके थे। हाउएवर वी शुड बेयर इन माइंड दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इवेंचुअली a century later extended as far as Spain, Sindh and Central Asia began in fact with the submission of the Arab tribes by the emerging Islamic state, first within Arabia and then in the Syrian and on the fringes of Iraq, as well as seafood. The unification of the Arabian Peninsula and its numerous tribes was the key factor behind the territorial expansion of Islam. देखिए क्या होगा, हमें माइंड में यहाँ रखनी है कि इस्लाम जो है सिर्फ नहीं रुकता है कि सासिनियन और रोमन एम्पायर, उसके बाद में वो जो है देखिए एज फार एज स्पेन जो है वहाँ तक चला जाता है। इधर इंडिया की तरफ हम देखें तो सिंध और सेंट्रल एशिया तक जो है रोमन इस्लाम है उसका एम्पायर कायदा होता है। चैप्टर 4 में काफ़ी डिटेल से बात करते हैं कि यहाँ आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। ये है मक्का जहाँ से मोहम्मद पैगम्बर जो है वो शुरू करते हैं इस्लाम को। मक्का से इनको जो है ट्रैवलिंग के लिए जाना पड़ता है मदीना, मक्का से इनको जो है मदीना जाना पड़ता है, जिसे एग्जाइल किया जाता है, वो हम आगे बात करेंगे। मक्का मदीना से शुरू होने वाला जो रोमन एम्पायर है, ये रोमन एम्पायर अपने आप ये इस्लामिक एम्पायर है, ये अपने आप को यहाँ से एक्सटेंड करते हुए नॉर्थ में यहाँ तक कि पूरे एरिया से कवर करते हुए स्पेन तक हो जाता है इधर, और इस तरफ भी अपने आप को जो है एक्सटेंड करते हुए सेंट्रल एशिया में सिंध तक जो है अपने आप को लेके आता है। तो इतना बड़ा जो है ये एम्पायर अपने आप में एक्सटेंड करता है वेस्ट एशिया का। इसको हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर वुड बी द इस्लामिक स्टेट। लेट्स सी द टाइमलाइन, रूलर्स एंड इवेंट्स वेरी केयरफुली। ऑगस्टस फर्स्ट रोमन एम्पायर रूलिंग फ्रॉम 27 BC to 14th century, 27 BC से 14th century तक रूल करता है। ऑगस्टस फर्स्ट रोमन एम्पायर होता है। इसके द्वारा जो प्रिंसिपेट फाउंडेड बाय ऑक्टेवियन नाउ कॉल्ड हिमसेल्फ ऑगस्टस। प्रिंसिपेट जो है इसका फाउंडेशन करता है, नेम क्या रहता है इस वक्त उसका ऑक्टेवियन, लेकिन बाद में अपने आप को क्या कहता है ऑगस्टस। पहले ऑक्टेवियन नाम होता है लेकिन बाद में अपने आप को ऑगस्टस कहता है। 14th century to 37 डिग्रीज जो है वो रूल करता है। लाइफ ऑफ द एल्डर प्लिनी डाइज इन द वोल्केनिक इरप्शन ऑफ वेसुवियस व्हिच आल्सो बरीज द रोमन टाउन ऑफ पोम्पेई। लाइफ ऑफ द एल्डर प्लिनी जो है और बहुत सारे इवेंट्स जो है वो होते हैं टेम्परेचर पीरियड में। और जो रोमन टाउन ऑफ पोम्पेई, ये वेसुवियस जो वॉल्केनो है, वेसुवियस वॉल्केनिक माउंटेन, वहाँ से जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसके अंदर जो है फिनिश हो जाता है। 60 से 70 के बीच में ग्रेट ज्यूइश रिवोल्ट होता है, कैप्चर ऑफ जेरूसलम बाय रोमन फोर्सेज। जो जेरूसलम है इजराइल में, उसको रोमन फोर्सेज जो है वो अपने कब्जे में ले लेती हैं। ट्रेजन जो है वो सपना देखता है अपने आगे इंडिया तक जो है जिस तरीके से सिकंदर द ग्रेट ने एम्पायर कर देने की, उस तरीके से देयर आर सो मेनी अदर जो है थिंग्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर, बट द मेजर पॉइंट्स व्हिच वी मस्ट हैव टू रिमेंबर इज द फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपेट फाउंडेड बाय ऑक्टेवियन, लाइफ ऑफ द न्यूक्लियस एम्पायर एंड 200 प्रोविंसेस। ये याद रखना है कि देखिए कॉन्स्टेंटाइन इश्यूज अ न्यू गोल्ड कॉइन इन द सॉलिडस। कॉन्स्टेंटाइन कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। कॉन्स्टेंटाइन जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है। क्रिश्चियनिटी को जो है एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन जो है उसके अंदर डिक्लेयर करता है। ऑल्सो कॉन्स्टेंटाइन नाउ सो रूलर ऑफ एम्पायर फाउंड सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कुछ हमें इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स यहाँ से याद रखने हैं। हेंस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। If you have any kind of question or if you have any kind of doubt, you could ask me. Till then, have a nice day.